So we have seen this for the boron family, and in this lecture we are going to see for the carbon family. So we have completed the boron family line to line along with the trends in the separate page, जहाँ से क्वेश्चन बनने की probability सबसे ज़्यादा होती है. And the last, that is PV lead. Lead exists in the form of galena, that is also known as the lead sulfide, PBS. So this is very important in this topic. So keep in mind this page is very important because again यहाँ पे ज़्यादा probability रहेगी कि क्वेश्चन यहीं से create होंगे in your examination. Welcome to Study Unscripted. Myself Saket, and this is the lecture on the P block elements. We have completed the boron family in the lecture 1. This is the second lecture where we are going to discuss the carbon family. We know that from the syllabus of NCERT books, this chapter has been deleted, but this chapter is included in the NEET and JEE by the NTA. So we are going to check the syllabus कि कौन सा topic है जो इस chapter से आ रहे हैं, because whole chapter is not in the syllabus of the NTA. So only limited topics are included. So these topics are given here. Okay, so that is the electronic configuration, general trends of physical and chemical properties along across the periods. Now unique behavior of the first element in these groups. So we have seen this for the boron family, and in this lecture we are going to see for the carbon family, and in the upcoming lecture we'll do this for the nitrogen, oxygen, halogens, and the noble gases. Okay, so let's get started with this lecture. We had already completed these topics. So we had completed the boron family line to line along with the trends in the separate page, जहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है. नाउ वी आर गोइंग टू डू द कार्बन फैमिली एंड विल see only those topics which are included in the syllabus by the NTA. We are not going to do the all topics because that is unnecessary to do at this time. So let's get started with the 11.5 topic, group 14 elements, the carbon family. Now group 14 element consists of carbon, silicon, germanium, tin and lead. So carbon, silicon, germanium, tin and lead, PB. ठीक है, so let's read this. Carbon, silicon, germanium, tin and lead are the members of group 14. Carbon is the 17th most abundant element by mass in the earth crust. So you have to keep in mind this is the 17th most abundant, और जो फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट था दैट वाज ऑक्सीजन विद द मास परसेंट ऑफ 45.5%. सेकेंड वाज द सिलिकन जिसका था 27.7%, विच वी हैव सीन इन द बोरोन फैमिली. ओके, बोरोन फैमिली वाले टॉपिक को करते हुए ये सब हमें मिले थे. एंड दिस कार्बन इज द 17th. ओके, सो इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर एज इन फ्री एज वेल एज इन द कॉम्बाइंड स्टेट. कॉम्बाइंड स्टेट में हम एलोट्रॉप्स में देखने वाले हैं. सो in elemental state it is available as coal, graphite and diamond. So we should highlight this. The elemental state of the carbon is coal, graphite and the diamond. However, the combined state it is present as the metal carbonates, hydrocarbon and the carbon dioxide gas. ठीक है, so very clearly it has given there जो elemental state है that is coal, graphite and the diamond, और जो combined state है that is metal carbonates, hydrocarbon and the carbon dioxide which is 0.03% in the atmosphere. So one can emphatically say that the carbon is the most versatile element in the world. So you have to highlight this. Carbon is the most versatile element, okay, because of the property it shows catenation, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं. So its combination with other elements such as the dihydrogen, dioxygen, chlorine, sulfur provide an astonishing array of materials ranging from the living tissue to drug and plastic. Means we can say that कि almost जो भी biomolecules होते हैं these are composed of the carbon, जो कि उनका एक major form होता है. So we can also say that कि एक reason हो सकता है इसके most versatile होने का. Now organic chemistry is devoted to carbon containing compounds. So it is essential constituent of all living organisms. Naturally occurring carbon contains two isotopes. okay, तो इसके जो दो स्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं जो कि नेचुरली अकर होते हैं that is 12C and the 13C. In addition to this, third isotope that is 14C is also present. ठीक है, so you have to keep in mind isotopes. Isotopes ये होता है इनका मास नंबर डिफरेंट होता है. A is different but Z is same. Z क्या होता है? Z is the इसके जो एटॉमिक नंबर होते हैं दिस इज सेम. सो द रेडियोएक्टिव आइसोटॉप विथ हाफ लाइफ ऑफ 5770 years is used for the radiocarbon dating. So we have to keep in mind the half life that is 5770 years,
And also again here it is given the silicon का mass percent, तो also highlight this also. Silicon second most है, that is 27.7% by mass, and most abundant element on the earth crust and is present in the nature in the form of silica and silicates. ठीक है, so this silicon is 27.7% और ये नेचर में प्रेजेंट है एज अ सिलिका एंड सिलिकेट्स. ओके, नाउ दिस सिलिकन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सिरेमिक्स, ग्लास एंड द सीमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस बोल रखा है ऑफ सिलिकन, जो कि कंपोनेंट होते हैं सिरेमिक के, ग्लास के और सीमेंट्स में भी. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. नाउ जर्मेनियम ऑल्सो, जर्मेनियम एग्जिस्ट ओनली इन द ट्रेसेस, काफ़ी लो अमाउंट में होता है. नाउ दिस टिन अकर्स मेनली एज द गैजिट्राइड, SnO2 एंड lead as the galena and PbS. So you have to keep in mind, जो कार्बन था उसका एलिमेंटल फॉर्म था और कार्बन का कॉम्बाइंड फॉर्म था. एलिमेंटल फॉर्म में हमने किसको किसको देखा, जिसमें था कोल, ग्राफाइट एंड डायमंड्स. और जो कॉम्बाइंड फॉर्म था जिसमें हमने CO2 गैस को देखा, हमने हाइड्रोकार्बन्स को देखा. ठीक है, एंड ऑल्सो द मेटल कार्बोनेट्स. ठीक है, नाउ दिस कार्बन वॉज 17th मोस्ट अबंडेंट, 17th. ठीक है, बस इतना याद रख लो. नाउ हमने जो सिलिका का देखा दैट वॉज 27.7% बाई मास और ये था सेकेंड मोस्ट. ठीक है, दिस वॉज प्रेजेंट इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ सिलिका एंड ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट्स. ठीक है, जब बात आई जर्मेनियम की तो ये एग्जिस्ट कर रहा था ओनली इन द फॉर्म ऑफ ट्रेसेस. देन जब बात आया टिन का, दैट इज Sn, तो दिस वाज एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ गैजिट्राइड, SnO2. ठीक है, एंड जब लास्ट दैट इज Pb, lead exist in the form of galena, that is also known as the lead sulfide. ठीक है, PbS. so this is very important in this topic, so keep in mind. ठीक है, now ultra pure form of germanium and silicon are used to make the transistor and the semiconductor devices. Now this transistor was included in your semiconductor chapter of class 12 physics, but now this has been deleted from the syllabus. But keep in mind, ये ट्रांजिस्टर टॉपिक डिलीट हुआ है, सेमीकंडक्टर पूरा चैप्टर आपका पढ़ा हुआ है. सो यू हैव टू कीप इन माइंड, जो अल्ट्रा प्योर फॉर्म होता है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन का, this is used in the making of the semiconductor devices and the transistors. Now the important atomic and the physical properties which is included in the syllabus by the NTA, you can check here. This is included in the syllabus, physical and the chemical properties of element across the period down the group. So we are doing by seeing the syllabus. So this is important to do by always keeping in mind what the syllabus is, because हम ना ज़्यादा पढ़ने वाले और ना ही कुछ कम. Now what is the electronic configuration? After completion of all this, we'll create one page जिसमें हम सारे trends को लिखेंगे just like we did for boron. Now what is the electronic configuration? The valence electronic configuration of this element is NS2 NP2. Now this thing stands for carbon, और जो बोरोन के लिए था that was NS2 NP1. ठीक है, inner core of the electronic configuration of element in this group also differs. inner core में क्या बोलना चाह रहा है, inner core में बस ये बोलना चाह रहा है कि कई बार कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, जैसे NP2 में NS में है, तो जो इनर कोर में होंगे कुछ डिफरेंस आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखेंगे तब समझ में आएगा. ठीक है, so now this is the electronic configuration. This is for carbon, this is for silicon, this is for germanium. तो यहाँ पे देखो इनर कोर में कुछ तो डिफरेंस है ना, बिकॉज यहाँ पे डी इन्वॉल्व हो चुका है. now this is tin and this is for lead. you can do this electronic configuration one by after knowing the chapter, that is the chemical bonding. अगर वो ठीक से पता है then you can solve this. और इसमें भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है. you have to keep in mind this series 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
3d10, 4p6। अगर तुम्हें ये चीज़ याद है देन तुम कर सकते हो, ठीक है। ये इंक्रीजिंग एनर्जी के बेसिस पे उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कैसे हम करते हैं उस पर है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द कोवेलेंट रेडियस? देयर इज द कंसिडरेबल इंक्रीज इन द कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन, देयर आफ्टर फॉर सिलिकॉन टू लेड अ स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस इज ऑब्जर्व। तो तुम कह सकते हो कि ये कार्बन से सिलिकॉन तक एक अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, बट जब तुम्हारे सिलिकॉन से लेड की बात आई तब वहाँ पे एक छोटा सा इंक्रीज हुआ है। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे 77 जो कि पिकोमीटर में है, वहाँ से 118 पे गया कार्बन टू सिलिकॉन, यानी इंक्रीज देख सकते हो। बट जब सिलिकॉन टू जर्मेनियम काफ़ी छोटा सा इंक्रीज हुआ है, ठीक है, यू कैन चेक दिस, सिलिकॉन टू जर्मेनियम एंड देन 10 देन फॉर लेड, काफ़ी छोटा छोटा इंक्रीज है। बट फॉर कार्बन एंड सिलिकॉन यहाँ पे एक ह्यूज जंप है इनके कोवेलेंट रेडियस में। So this is due to the presence of completely filled D and F orbitals in the heavier members. So this from here adjacent region can be created very easily. और आराम से एजर्सन में तुमसे ये पूछ सकता है कि कार्बन टू सिलिकॉन में एक अच्छा खासा जंप होता है, उसके कोवेलेंट रेडियस में इंक्रीज होती है, बट फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड अ स्मॉल इंक्रीज इन द रेडियस इज ऑब्जर्व्ड। दिस विल बी एज एजर्शन, और जो इसका रीजन होगा दैट विल बी this is due to the presence of completely filled D and F orbitals in the heavier members. So very easily assertion and reason type of question can be created from this topic. Okay, so let's move to the next line. That is the next subtopic 11.5.3 ionization enthalpy. No, you know that ionization enthalpy क्या होता है? From isolated gaseous atom से उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है, उसको निकालने में जो एनर्जी की कंजम्पशन होती है। Now the first ionization enthalpy of group 14 member is higher than the corresponding members of group 13. The influence of inner core electron is visible here also. So we can say that जब बोरोन फैमिली से तुम आगे बढ़ते हो तो इसको निकालने में ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। तो इसके पीछे का जो रीज़न है द इन्फ्लुएंस ऑफ इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। Now let's move. In general, the ionization enthalpy decreases down the group. A small decrease in first ionization enthalpy from silicon to germanium to tin, and slight increase in the enthalpy of tin and lead is the consequence of poor shielding effect intervening the D and F and increase in the size of atom. तो तुम कह सकते हो कि ये क्या बोलना चाह रहा है, बस ये बोल रहा है, सपोज करो ये कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टेन है और ये जो लेड है, तो पहले तीन के लिए काफ़ी अच्छा खासा एनर्जी लग रहा था जो तुम्हारा आयनाइजेशन एंथैल्पी था। सो दिस वाज बिकॉज जब नीचे की तरफ ये आता है तो पहली बात डी एंड एफ का इन्फ्लुएंस आ जाता है और ये पुअर शिल्डिंग इफेक्ट शो करता है एज कम्पेयर टू एस एंड पी। तो इसकी वजह से भी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो डिक्रीज होते जाती है एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द रेडियस। बट फॉर द टेन एंड लेड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब आसानी से निकल जाता है एज कम्पेयर टू इन तीनों के। So this is also because of the consequence of the poor shielding effect and the intervening D and F orbitals and the increase in the size of atom. So this is quite easy. तुम ऐसे भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। Now what is the next statement? Okay, the next topic is about the electronegativity. So due to the small size and element in this group are slightly more electronegative than the group 13 elements. Now the electronegativity value of this element from silicon to lead are almost the same. Now this is an important statement कि जो तुम्हारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड इसकी जो वैल्यू है ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये किस पे इफेक्ट हो रहा है, ड्यू टू द स्मॉल साइज द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो तुमसे अगर क्वेश्चन पूछे बोरोन और कार्बन फैमिली में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो दिस कार्बन वन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और यहाँ पे जो इसने इस चीज़ के लिए रीज़न दिया है उसके स्मॉल साइज को इसका वो रीज़न बता रहा है, ठीक है। और सिमिलरली जब तुम नाइट्रोजन फैमिली पे जाओगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इंक्रीज होते जाएगी, देन ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन, ठीक है। सो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मोस्ट, और जो ऑक्सीजन है दैट इज द सेकेंड मोस्ट। Now let's come on the physical properties. Okay. Group 14 members are solid. All group 14 members are solid. तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन तो नहीं शो हो रहा है, तो तुम कह सकते हो जितने भी ग्रुप 14 के मेंबर्स है वो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड है, दीज आर सॉलिड। नाउ कार्बन एंड सिलिकॉन्स आर नॉन मेटल्स, जर्मेनियम इज मेटलोइड, सो वी आर गोइंग टू राइट हियर कार्बन
एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल्स। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो जो सेकेंड एलिमेंट है इस ग्रुप का जो सिलिकॉन है, दिस इज नॉन मेटल। बट जब हमने बोरोन फैमिली को देखा था तो बोरोन फैमिली में जो सेकेंड एलिमेंट था उसका वो एल्यूमिनियम था और वो मेटल था, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल था वो। बट यहाँ पे जो सेकेंड वाला है वो एक नॉन मेटल है। नाउ दिस जर्मेनियम एंड द टिन, ठीक है, तो टिन और लेड को तुम साइड रखो, ये जो जर्मेनियम है दैट इज मेटलोइड। नाउ अपना जो ये अब टिन और लेड होगा तो ये मेटल्स होंगे, ठीक है, सॉफ्ट मेटल्स विथ लो मेल्टिंग पॉइंट। टिन एंड लेड आर सॉफ्ट मेटल्स जिसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है लो। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जहाँ से क्वेश्चन काफी इजीली क्रिएट हो सकते हैं। टिन और लेड वो दोनों को हम सॉफ्ट मेटल्स बोलते हैं। बाकी अपना जो जर्मेनियम है वो तो अपना मेटलॉइड निकल गया, जर्मेनियम जो था वो अपना मेटलॉइड हो गया, और बचा अपना जो कार्बन और सिलिकॉन तो ये हो गया नॉन मेटल्स, ठीक है। Now melting point and boiling point of group 14 element are much higher than those of corresponding element of group 13। तो यहाँ पे बार बार कंपैरिजन हो रही है बिटवीन बोरोन एंड द कार्बन फैमिली, ठीक है। तो तुम कह सकते हो ये जो कार्बन फैमिली है इनके पास हायर बीपी एंड एमपी होगा एज कंपेयर टू बोरोन फैमिली। So there's nothing that much important. Now we are going to see the chemical properties. Now before doing this we are going to summarize this all a table, ठीक है। और ये जो भी हमने टर्म्स देखा अबाउट द कोवेलेंट रेडियस, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, इन सबको हम क्या बोलते हैं समराइज करेंगे। तो इसको हम कहाँ पे करते हैं, इसको हम बोरोन फैमिली के नीचे वाले पेज के ट्रेंड पे करते हैं। सो इफ़ यू वांट तुम भी लिख सकते हो या तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू ऐड अ पेज हेयर और यहाँ पे हम कार्बन फैमिली के ट्रेंड्स को लिखते हैं। नाउ दिस पेज इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। और 2024 में ऑक्सीजन फैमिली के ट्रेंड से क्वेश्चन थे, ठीक है। तो जो सबसे पहला ट्रेंड हम जिसको देखने वाले हैं दैट विल बी ऑफ द फर्स्ट पॉइंट जो कि था अपना कोवेलेंट रेडियस के बारे में, ठीक है। तो कोवेलेंट रेडियस में देखो क्या है, इसमें जो सबसे बड़ा होगा वो तो अपना लेड होगा। तो चलो हम सीरीज में इसको लिखते हैं, सबसे छोटा कार्बन, उससे बड़ा सिलिकॉन, उससे बड़ा जर्मेनियम, उससे बड़ा टिन, उससे बड़ा लेड, ठीक है। ये दोनों हैं सॉफ्ट मेटल्स, दिस इज द मेटलॉइड एंड दिस टू आर द नॉन मेटल्स। इन सारी चीज़ों को जितनी ज़्यादा बार रिवाइज करो उतनी ज़्यादा अच्छी बात रहेगी तुम्हारे लिए, ठीक है। नाउ द सेकेंड वन इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। नाउ व्हाट इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यू नो दैट आइसोलेटेड गैसेस एटॉम से, आइसोलेटेड गैसेस एटॉम से उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के निकालने में जो एनर्जी लगती होगी, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है वो कार्बन के लिए, देन फॉर सिलिकॉन, देन फॉर जर्मेनियम, देन फॉर लेड, देन फॉर टिन। तो यहाँ पे टिन में ये लगती है लोएस्ट। और इसके पीछे जो इसने रीजन जो अपने बुक में दे रखा था, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ, ओके। नाउ जो थर्ड पॉइंट होगा वो भी होगा अपना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे बेस्ड। वी हैव सीन दिस कि बोरोन फैमिली से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, और उसका जो रीज़न जो अपने बुक में दे रखा है दैट वेज अबाउट द स्मॉल साइज ऑफ द कार्बन फैमिली एज कम्पेयर टू बोरोन। सो इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिव होती है, सबसे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो है कार्बन, उसके बाद है लेड। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिख रहा है, तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। उसके बाद जो है सिलिकॉन से लेकर जर्मेनियम और टिन, ये ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। ना यू माइट बी थिंकिंग मैंने कहाँ से इन चीज़ों को लिखा है। सो मैंने वो जो टेबल दे रखा है ना वहाँ से मैंने इसको सेग्रीगेट करा है, ठीक है। सो सेकेंड हाईएस्ट electronegative element is the 10 sorry lead, you have to keep in mind Pb is the second highest and carbon is the first, बाकी के सारे ऑलमोस्ट सेम होते हैं। नाउ फोर्थ वन इज द डेंसिटी। डेंसिटी में जो सबसे लोएस्ट डेंसिटी होती है वो होती है सिलिकॉन की, उसके बाद होती है कार्बन, उसके बाद जर्मेनियम, देन टिन एंड देन लेड। तो यहाँ पे तुम कह सकते हो
लीड की जो डेंसिटी होती है वो हाईएस्ट होती है और सिलिकॉन की होती है लोएस्ट। सो इन दोनों में काफ़ी अच्छा खासा, यहाँ पे इन दोनों में काफ़ी अच्छा खासा एक्सेप्शन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप के जहाँ पे एक्सेप्शंस मिलते हैं वहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट भी कुछ इसका ऐसे है, कार्बन सबसे ज़्यादा, देन सिलिकॉन, जर्मेनियम। यहाँ पे अगेन एक्सेप्शन आ गया। तो यहाँ पे जो 10 है वो सबसे लोएस्ट है और जो लेड है वो सेकेंड लोएस्ट है, ठीक है। तो जो भी एक्सेप्शन है मैंने उसको सर्कल कर दिया है। ये सारे एक्सेप्शन है जो भी तुम्हें सर्कल में दिख रहे हैं। नाउ द सिक्स्थ वन इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड कुछ ऐसा है, जो कि सबसे हाईएस्ट होगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेन और लेड। क्योंकि कार्बन के बारे में उसने टेबल में कुछ दे नहीं रखा था इसलिए मैंने नहीं लिखा। नाउ व्हाट इज द कैटेनेशन? यू नो द कंबाइनिंग कैपेसिटी इज द कॉल्ड कैटेनेशन विद द अदर एलिमेंट, जो कंबाइन करने की उनकी कैपेसिटी होती है। सो दिस इज हाईएस्ट इन द कार्बन, देन द silicon, then it is almost equal in germanium and the tin, but keep in mind ये जो catenation property होती है this is not shown in lead, ठीक है। now the last one is the allotrope stability। allotrope इनकी stability क्या है? नाउ इनकी जो एलोट्रोपिक स्टेबिलिटी होती है जो सबसे ज़्यादा होती है, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, मॉक में भी तुमने देखा होगा और पीवाईक्यू में भी तुमने कहीं ना कहीं देखा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे स्टेबल एलोट्रॉप फॉर्म होता है कार्बन का, दैट इज द ग्रेफाइट विथ चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू 0। और जो सेकेंड हाईएस्ट होगा दैट विल बी ऑफ डायमंड, ठीक है। किलो जूल पर मोल इसका यूनिट है। और जो लास्ट होगा दैट विल बी ऑफ फ्लोरीन, जिसकी डेल्टा एच है 38.1 किलो जूल पर मोल, ठीक है। सो कीप इन माइंड दिस। सो ये जो पेज है दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेंड ऑफ द कार्बन फैमिली, और यहाँ से इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन पूछे नहीं जा सकते ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड, बिकॉज एनसीईआरटी में जो भी कार्बन फैमिली पे कोई ट्रेंड है वो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो, मैच कर सकते हो, यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने सारे पॉइंट को डिस्कवर कर लिया हमने। ये तो बोरोन का है, चलो अभी हम देखते हैं, ये है ना। तो हमने देखो एटॉमिक नंबर में पता है, मास में पता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें देख लिया, कोवेलेंट देख लिया, आयनिक रेडियाई देखो, बस ये जनरल होता है, नीचे की तरफ इंक्रीज होता है तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। फिर हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी का देख लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लिया, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब देख लिया हमने। बचाई क्या? बचाइए अपना इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी क्या है इसका बस देख लो, कार्बन का 10⁻14 to 10⁻16, बाकी के लिए दो जन के लिए 50, लास्ट 2 के लिए 10⁻⁻5 और एक के लिए 2 × 10⁻⁻5। दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट बस एक बार देख लो, टेबल दे रखा है तो। सो इसमें जो सबसे हाईएस्ट है रेजिस्टिविटी वैल्यू वो है कार्बन के लिए, ये चीज़ दिमाग में रख लो अपने, ठीक है। और जो लोएस्ट है अपना 10 के लिए दे रखा, ओके। ये क्या दे रखा है? ऑक्सीडेशन स्टेट, 6 कोऑर्डिनेशन, पॉलिंग स्केल। तो ये कुछ नहीं है, जहाँ मिलेगा वैसे हम इसको पढ़ते चलेंगे, ठीक है। So let's move to the next subtopic, that is 11.5.6 chemical properties. Here we are going to see the oxidation state and the trends in the chemical reactivities. So let's first read the topic, then we'll highlight all the important portion. Now the group 14 elements have 4 electron in the outermost shell. Okay, we have seen here कैसे लिखते हैं इसको, NH2 NP2 लिखते हैं ना, तो 2 + 2 4 तो हो गया। So the common oxidation state exhibited by these elements are +4 and +2। अब यहाँ पे जो -2 की जो डिक्रीज है दिस इज बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर, तुम्हें पता है ना इनर्ट पेयर के चलते हैं। नाउ कार्बन ऑल्सो एग्जिबिट निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, यू हैव टू कीप इन माइंड। कार्बन जो है वो निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी देता है, सिंस द सम ऑफ द फर्स्ट 4 आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई, ठीक है। कंपाउंड इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आर जनरली कोवेलेंट इन नेचर।
तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं +4 वाले होते हैं कोवेलेंट। In heavier members, the tendency to show +2 oxidation state increases in the sequence। तो ये जो है ना अपना सीक्वेंस दे रखा है कि कैसे +2 शो करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है। तो बस यू हैव टू कीप इन माइंड जो नीचे की तरफ होता है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट इनका इंक्रीज होते जाता है। तो जो अपना ये जो लेड है ना ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा +2 में, +4 में ये एक्ट करेगा ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वो चाहेगा कि खुद को रिड्यूस कर ले। सो इट इज़ ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस सेल टू पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। सो अगेन यहाँ पे असर्शन रीजन के क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं काफ़ी इजिली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रीज़न है, यहाँ पे ये रीज़न है कि वो एबल नहीं होता है, NH2 उनका इनेबिलिटी शो करता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैलेंस सेल को पार्टिसिपेट करने में बॉन्डिंग में। तो इसकी वजह से ये किस चीज़ को शो करना प्रीफर करता है, +2 को शो करना प्रीफर करता है। सो द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ दीज टू ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी डाउन द ग्रुप। कार्बन एंड सिलिकॉन मोस्टली शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो कार्बन सिलिकॉन मोस्टली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ओनली फ्यू कंपाउंड इन +2 स्टेट्स होता है जिसमें लेड तो अपना सबसे आगे है। नाउ टिन जो होता है वो फॉर्म करता है कंपाउंड इन बोथ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, +2 में और ऑल्सो इन द +4 में, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो टिन +2 +4 दोनों में शो करने के लिए उसको कोई परेशानी आपत्ति नहीं है, ठीक है। नाउ दिस जो ये अपना लेड होता है, ओके, यहाँ पे टिन के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है। टिन जो होता है ना +2 स्टेट में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट शो करता है, क्योंकि ये क्या करना चाहता है, खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज से अपने आप को ऑक्सीडाइज करके +4 में जाना चाहता है टिन। बट दिस थिंग इज अपोजिट इन द केस ऑफ लेड। यहाँ पे जो लेड में है ना वो +2 वाला केस स्टेबल होता है ज़्यादा, जब हमने समझा था अभी, देन द +4। और वो जो +4 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। +4 इन लेड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज दिस वांट टू अटेन द +2 कन्फिग्रेशन बैक। नाउ इन टेट्रावैलेंट स्टेट the number of the electron around the central atom and molecule, example carbon CCl4 is 8। एक क्या बोल रहा है यहाँ पे, बस यही बोलना चाहता है कि कोई भी टेट्रावैलेंट स्टेट हो वहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं अराउंड द सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल, जो कि कार्बन है इन द केस ऑफ CCl4, तो वो 8 होता है। तो तुम कैसे कह सकते हो 8 होता है, तो ये देखो कैसे 8 होता है। ये रहा अपना CCl4 का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना अगर कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ऑफ कोर्स वी कैन सी हियर कि यहाँ पे जो सेंट्रल अपना एटॉम है वो कार्बन है और यहाँ पे +8 उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं आसपास। सो बीइंग द इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, यानी कि इनको ना कमी है 8 से, ना ये कम है ना 8 से ज़्यादा है। सो दे आर नॉर्मली नॉट एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। इनको जरूरत नहीं है दोनों की तरफ काम करने की, हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ऐसा करते होंगे। बट ऑल्दो कार्बन कैन नॉट एग्जिट इट्स कोवैलेंसी मोर देन 4। तो यहाँ पे एक चीज को पता रखना तुम कि ये जो कार्बन होता है ना उनकी कोवैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। क्या कि तुम देख सकते हो ना CCl4 में उनके साथ जो अटैच्ड ग्रुप है वो 4 ही हैं। ऐसा तो नहीं है कि ना CCl8 हो जाए या CCl10 हो जाए, नो, कोवैलेंसी 4 है तो 4 रहेगी। बट अदर एलिमेंट इन दिस ग्रुप कैन डू सो बिकॉज उनके पास डी ऑर्बिटल्स आ जा रहे होंगे ना। सो इट इज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल इन देम। सो अगेन हियर वी कैन सी के एजर्सन रीजन अगेन क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे बस ये बोल रहा है कि कार्बन तो है उसका तो कोवैलेंसी 4 फिक्स्ड है, बट जो उसके अदर फैमिली के मेंबर्स हैं वो +4 से ज़्यादा शो करते हैं। तो उसके पीछे जो रीज़न है, सो दिस इज बिकॉज द डी ऑर्बिटल्स, उनके पास ये पावर आ रही है कि वो अपनी जो ऑक्टेट है उसको वो आगे की तरफ बढ़ा सके, ठीक है। नाउ ड्यू टू दिस देयर हालाइड अंडरगो द हाइड्रोलाइसिस एंड हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड द डोनर स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल जो देखो तुम्हारा देखो यहाँ पे सिलिकॉन के साथ 6 फ्लोरीन है, यानी कि इसने अपनी कोवैलेंसी को आगे बढ़ाया है और इसके आगे बढ़ाने का रीज़न है 3d10 उसकी ऑर्बिटल डी की। यहाँ पे देखो जर्मेनियम में भी 6 ले लिया, टिन ने भी 6 ले लिया, बट वी कांट से कि कार्बन कभी 6 लेगा, नो, कार्बन कभी भी 6 को नहीं लेगा, ठीक है, नेवर, वो 4 को ही लेगा क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 है। सो इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d2 हो गई, बिकॉज यहाँ पे तुम देख सकते हो 6 लाइगेंड अगर इनके पास लगा हुआ है तो sp3d2 ही होंगे ना। और यहाँ पे देख लो अपने जो हेलोजेंस हैं वो तो बैक बॉन्डिंग शो करने नहीं देंगे। इन हमने देखा है ना इसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड होता है। इफ़ यू हैवंट रेड यू कैन गो एंड चेक द प्लेलिस्ट, वहाँ पे अपना पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर, ठीक है। नाउ व्हाट इज अबाउट द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। अब हम यहाँ पे कार्बन फैमिली की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन देखने वाले हैं। सो ऑल मेंबर्स व्हेन हीटेड इन ऑक्सीजन फॉर्म्स द ऑक्साइड, ठीक है,
दीज आर मेनली टू टाइप ऑफ ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड। तो जो अपना मोनोऑक्साइड होगा वो होगा MO, और जो डाइऑक्साइड होगा वो होगा MO2, सिंपल। तो ये हो गया मोनोऑक्साइड, ये हो गया अपना डाइऑक्साइड, ठीक है। सो यहाँ पे जो SiO है ओनली एग्जिस्ट एट अ हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो मोनोऑक्साइड है, यहाँ पे सिलिकॉन का एक मोनोऑक्साइड है जो ओनली एट हाई टेम्परेचर है, ओनली एट हाई टेम्परेचर। सो दिस थिंग्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कहाँ से कब क्वेश्चन क्रिएट हो जाए यू डोंट नो। ऑक्साइड इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स आर जनरली मोर एसिडिक देन द लोअर वन। अब सपोज करो कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी मेटल की वो +4 आएगी, तो तुम कह सकते हो इसकी +4 आई और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई वो +2 आई। तो वी कैन श्योरली से दैट कि यहाँ पे जो +4 वाले होंगे वो ज़्यादा एसिडिक होंगे एज कम्पेयर टू +1, ठीक है। सो अमंग दोस इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, नाउ द ऑक्साइड ऑफ CO2। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या देखा, डाइऑक्साइड को हम देख रहे हैं वो कार्बन के लिए, सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए वो एसिडिक है। और जो तुम्हारे टेन और जब लेड की बातें आती हैं SnO2 या PbO2, दीज आर एम्फोट्रिक इन नेचर। और ये तो हमने बात किया किसके केस में, अबाउट द डाइऑक्साइड के केस में MO2। बट जब मोनोऑक्साइड की बातें आएंगी तो मोनोऑक्साइड में जो तुम्हारे CO वाले होंगे वो होंगे न्यूट्रल, और जो तुम्हारे जर्मेनियम के मोनोऑक्साइड होंगे वो होंगे डिस्टिंक्टिवली एसिडिक, वेयर एज जो SnO और PbO होंगे दे विल बी एम्फोट्रिक। तो बस मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एम्फोट्रिक वाले को साइड में लिख सकता हूँ बिकॉज यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली ऑन द एम्फोट्रिक, ठीक है। तो तुम कह सकते हो कि Sn और Pb वाले जितने भी है ना सारे के सारे एम्फोट्रिक हैं, दिस इज अ टाइप ऑफ ट्रिक। तो आप देखो SnO2 है, PbO2 है, SnO है या PbO है, ऑल दिस फोर आर द एम्फोट्रिक वन, सो यू डोंट हैव टू टेक टेंशन कि कैसे याद रखना है। अब यहाँ पे जो कार्बन का मोनोऑक्साइड है दिस इज न्यूट्रल, बट जो कार्बन का जो डाइऑक्साइड है दिस इज एसिडिक, तो यू हैव टू कीप इन माइंड। सिलिकॉन का डाइऑक्साइड, जर्मेनियम का डाइऑक्साइड, बोथ आर एसिडिक। और अब यहाँ पे इन दोनों को तो हमने देख लिया, एम्फोट्रिक है, सॉरी एम्फेट्रिक है, एम्फोट्रिक, ठीक है, हो गया और कुछ नहीं है। और GeO यानी कि जर्मेनियम का जो मोनोऑक्साइड है वो डिस्टिंक्टली एसिडिक होता है, ठीक है। यानी कि जर्मेनियम का डाई हो या जर्मेनियम का मोनो हो, दोनों में कहीं ना कहीं वो एसिडिक शो कर सकते हैं। नाउ लेट्स चेक द प्रॉब्लम नंबर 11.5, ठीक है। सेलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप 14 दैट, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, फॉर्म्स द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, तो वो है कार्बन, ठीक है। CO2 फॉर्म करता है और मैक्सिमम वो एसिडिक नेचर शो करता है। एंड जो सेकेंड है कॉमनली फाउंड इन द प्लस ऑक्सीडेशन टू स्टेट, तो यहाँ पे जो लेड है बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। और जो थर्ड क्वेश्चन है यूज्ड एज द सेमीकंडक्टर, तो यूज्ड एज अ सेमीकंडक्टर ओनली इन द प्योर फॉर्म। अब तुम गंदगी में नहीं कर सकते हो ना, ठीक है। अब वो बात अलग है कि तुम डॉपिंग करते हो जो भी करते हो, बट जो NCERT की जो लाइन्स है उसको तुम अपने दिमाग में रखो। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इन द प्योर फॉर्म आर यूज्ड इन द ट्रांजिस्टर्स and the semiconductor devices. Now let's move to the point number 2 that we are going to see about the reactivity of the carbon family with the water. So carbon ho, silicon ho, germanium ho are not affected by water. Now carbon, silicon, germanium not affected by HOH. टीन जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है स्टीम टू फॉर्म द और डाइऑक्साइड एंड द डाइहाइड्रोजन गैस। नाउ तुम देख सकते हो यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखा है, टिन जो कि ऑक्साइड मतलब जो है ना वाटर के साथ, अब वो वाटर जो है वो स्टीम के फॉर्म में है। तो यहाँ पे जब वो हीट आ रहा है यानी कि स्टीम ही है तो हीट ही आएगा ना, तो यहाँ पे वो टिन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस में वो हो जा रहा है ना, बाहर आ जा रहा है। तो यहाँ पे जो SnO2 है, यू हैव टू कीप इन माइंड दिस इज एम्फोट्रिक, ठीक है। So lead is unaffected by water probably because of the protective oxide film formation। तो तुम यहाँ पे एक चीज लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ SN10 और जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SnO2 + H2, यानी कि ये वाटर सिलेक्ट करके ये इनके साथ हो जा रहा है। और जो अपना लेड है ये भी अनअफेक्टेड है ड्यू टू प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म। अब यहाँ पे इस चीज की रिएक्शन नहीं दे रखी तो हमें क्यों परेशान होना है। प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म फॉर्मेशन ये कहाँ पे होता है, ये होता है PB में, लेड में, ठीक है। सो दिस इज क्वाइट इजी, बस तुम्हें ये याद रखना है कि ये होता है। एंड बेस्ट थिंग ये रहेगा कि तुम अगर चैप्टर कर लिए हो या दूसरी बार अगर रिवाइज करना है तो यू कैन ओनली प्ले द लेक्चर एंड कीप योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू।
मैं लाइन टू लाइन पढ़ रहा हूँ, अपने बुक पे उंगली रखो और मूव करते चलो। नाउ जो पॉइंट नंबर 3 है, दैट इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हैलोजन। सो वी आर गोइंग टू चेक कार्बन फैमिली कैसे रिएक्ट करता है विद द हैलोजेंस, ठीक है। सो दीज एलिमेंट कैन फॉर्म द हलाइड ऑफ फॉर्मूला MX2 या MX4। तो MX2 के साथ जब शो करेगा जब उसकी +2 ऑक्सीडेशन होगी, और MX4 जब उसके पास +4 ऑक्सीडेशन होगी। तो जो हलाइड्स हैं दैट विल बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है तो उसको हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट कार्बन ऑल अदर मेंबर्स रिएक्ट डायरेक्टली विद द हेलोजेंस अंडर द सुटेबल कंडीशन टू मेक द हलाइड। मीन्स वी आर गोइंग टू से दैट कि जो अपना ये कार्बन वाला है ना, कार्बन है जो सिर्फ ये बहुत आसानी से तो रिएक्ट करने से रहा हेलोजन से, ठीक है, डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर पाता। बाकी जो रेस्ट ऑफ कार्बन फैमिली के मेंबर्स हैं दे कैन रिएक्ट डायरेक्टली। सो मोस्ट ऑफ द MX4 आर कोवेलेंट इन नेचर। The central metal atom in this halides undergo sp3 hybridization. Now they are going in the sp3 hybridization, और इसका जो रीजन है इसके पीछे बिकॉज ऑफ द 4 सिग्मा बॉन्ड्स। जैसे कि हमने CCl4 देखा था, तो यहाँ पे देखो इनके कोवेलेंसी में है 4 क्लोरीन और इनकी जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो है 4। नाउ तो ये तो हो गया sp3 तो है ही है, और ये टेट्राहाइड्रल भी है, ठीक है, इन शेप। नाउ एक्सेप्शन, अगेन यहाँ पे एक्सेप्शन आया। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, ठीक है। तो कीप इन माइंड यहाँ पे जो एक एक्सेप्ट आया था, फिर यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन में जो ना टिन का जो 4 वाला फॉर्म है, 4 हलाइड का जो फॉर्म है टेट्राहाइड, और जो लेड का जो टेट्राहाइड है विच आर आयोनिक इन नेचर, ठीक है। हमने ये तो देखा था कि मोस्ट ऑफ द MX4 आर कोवेलेंट, ठीक है, बट हमें एक्सेप्शन में ये मिला कि जो अपने मोस्ट के अलावा जो 2 बच रहे थे ना, टिन और लेड, वो आयोनिक निकल चुके हैं। नाउ लेट्स चेक, ये जो अपना लेड है टेट्राहाइड्रल जो टेट्राहाइलाइड फॉर्म में है डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज PBI बॉन्ड इनिशियली फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन डज नॉट रिलीज इनफ एनर्जी टू अनपेयर 6s2 इलेक्ट्रॉन एंड excite one of them to higher orbital to have 4 unpaired electron around the lead atom। इतना परेशान मत हो, बस तुम इतना याद रखो, ये जो PBI4 है नॉट फॉर्म्स, ठीक है, और इसके पीछे जो रीजन दे देना, लिख देना बस 6s2 से रिलेटेड ये चीज़ है, ठीक है। अब 6s2 से कैसे रिलेटेड है, बिकॉज अगर क्वेश्चन को कंफ्यूज करना होगा तो ये 6s2 5s2 के साथ ही करेगा। बस तुम एक बार और देख लो, PBI4 does not exist because PBI bond initially formed during the reaction does not release enough energy to unpair the 6s2 electron and excite one of them to higher orbital to have the 4 unpaired electrons around the lead atom। उतनी एनर्जी ही नहीं मिली कि 6s2 से अपने आप को वो तोड़ सके और अपने आप को एक्साइट कर सके टू द हायर लेवल कि वो बाकी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बैठ सके। कौन? लेड, ठीक है। Now, heavier members of germanium and lead are able to make the halide of formula MX2। अब MX2 फॉर्म हो रहा है बिकॉज इनके +2 ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, बट यहाँ पे 10 को इसने नहीं लिया, टिन को नहीं लिया, SN को नहीं लिया, बस इसने जर्मेनियम को ले लिया है। तो इन चीज़ों को ध्यान देना, जर्मेनियम और जो लेड है वो +2 के साथ फॉर्म करने को तैयार है हलाइड, ठीक है। सो स्टेबिलिटी ऑफ डाइहलाइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप कंसिडरिंग द थर्मल एंड द केमिकल स्टेबिलिटी GX4 इज मोर स्टेबल देन द GEX2, ठीक है। तो तुम यहाँ पे एक चीज को लिख लो, GEX4 GEX2, और यहाँ पे हम जो बातें कर रहे हैं ना, ये हम बातें कर रहे हैं अबाउट द स्टेबिलिटी। एंड इसके पीछे जो रीजन दे रखा है इसने, यहाँ पे हमने किस चीज को कंसिडर कराया, वो जो चीजें बुक में जो दे रखी हैं वो हमने कंसिडर कराया थर्मल एंड केमिकल स्टेबिलिटी को, ओके। और वैसे भी तुम्हें पता है जो अपना ये GEX4 है, यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और +4 ऑक्सीडेशन नंबर मोर प्रिफर्ड होता है इन द केसेस ऑफ कार्बन और जर्मेनियम, ठीक है। बट जब तुम्हारी बात आएगी लेड के बारे में तो यहाँ पे PbX2 मोर स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू द PbX4, और इसके पीछे जो रीज़न होगा, ठीक है, यही होगा कि Pb जो है वो इनर्ट पेयर के चलते +2 को देना ज़्यादा प्रीफर करता है। बाकी +4 में आते ही वो क्या करता है, वो अपने आप को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करने लगता है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, वेयर द PbX2 इज मोर देन द PbX4, स्टेबिलिटी की बातें कर रहा है। एक्सेप्ट CCl4 अदर टेट्राक्लोराइड आर इजिली हाइड्रोलाइज बाई वाटर बिकॉज द सेंट्रल एटॉम कैन accommodate the lone pair of ओके,
इसको कर लो, इंपॉर्टेंट है तो इसको कर लो हाईलाइट। एकोमोडेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑक्सीजन एटॉम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द डी ऑर्बिटल्स। ये क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ पे लिख लो सेंट्रल एटॉम, ठीक है। यहाँ पे लिख लो एक्सेप्ट CCl4, बिकॉज जो कार्बन जो सेंट्रल एटॉम है इनके पास डी ऑर्बिटल्स है ही नहीं, एस नो डी ऑर्बिटल, तो ये लोन पेयर को कहाँ रखेगा इसके पास जब जगह ही नहीं है रखने की। तो दैट इज वाई यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस की जब बातें होंगी, और देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, अदर टेट्राक्लोराइड्स आर इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर बिकॉज द सेंट्रल एटॉम कैन इजिली एकोमोडेट। यहाँ पे लिख लो हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ टेट्राक्लोराइड्स। नाउ अब तुम काफी आसानी से इसको देख के समझ सकते हो, जो हाइड्रोलाइसिस है ऑफ टेट्राक्लोराइड्स, और यहाँ पे लिख लो एक्सेप्ट CCl4, वो इजिली हो पाते हैं बिकॉज ऑफ द सेंट्रल एटम कैन एकोमोडेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑक्सीजन एटम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द डी ऑर्बिटल। ओके, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोलाइसिस को इसने शो करा है, तो यहाँ पे इसने SiCl4 के साथ शो करा है। ऐसा तो नहीं है कि इसने CCl4 के साथ शो कर दिया, बिकॉज CCl4 के साथ ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो हाइड्रोलाइसिस कैन बी अंडरस्टूड बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ SiCl4, ठीक है। undergo the hydrolysis by initially accepting the lone pair of electrons from water molecules। तो ये कुछ ऐसे हो रहा है कि इसने जो है ना लोन पेयर को एक्सेप्ट कराया है वाटर मॉलिक्यूल से इन द डी ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन। तो तुम इस चीज को देख सकते हो, यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे दो लोन पेयर है, जिसमें से इसने एक जो लोन पेयर को है ना यहाँ पे अपने सिलिकॉन के पास इधर अपने एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल है तो ऐसा ये कर सकता है, जिसके पास नहीं होगा वो नहीं कर सकता। और यहाँ पे फॉर्मेशन किस चीज की कर रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा है SiOH4 के साथ, जिसको हम सिलिक एसिड बोलते हैं, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो कीप इन माइंड, जो SiOH4 है इसको हम सिलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, और ये हाइड्रोलाइसिस की वजह से बनता है। नाउ SiF6 इज नोन एज whereas the SiCl6 इज नॉट गिव द पॉसिबल रीजन। अब यहाँ पे तुमने एक चीज को देखा, जो हमने देखा था कि कार्बन के अलावा बाकी सारे जो है ना अपना ऑर्बिटल को एक्सपेंड कर सकते हैं, वो कोवेलेंसी 4 से बाहर निकल के 6 8 तक जो भी उनको मैंने ले, बट यहाँ पे जो सिलिक एसिड का जब फॉर्मेशन हुआ तो वहाँ पे बस इसने 4 को लिया, तो इसके पीछे भी रीजन होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से वो भी 4 एंड 6 में कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे तो ये रीजन था कि इतने हमको वाटर मॉलिक्यूल्स जो हमने दिए थे इनको सिलिक एसिड में वो 4 ही थे, तो इसने 4 को अपना एक्सेप्ट करा। बट जब बात आती है जब लेगेंड SiF6 को, तो इसने 6 में एक्सेप्ट कर लिया लेगेंड को, बट जब इसने SL6 की बात आई तो ये 6 एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो ऑफकोर्स जो अपना क्लोरीन है यहाँ पे इसका कुछ प्रॉब्लम होगा, तो अब देखते हैं द मेन रीजंस आर, तो जो 2 रीजंस दे रखे हैं, 6 लार्ज क्लोराइड आयंस कैन नॉट बी अकोमोडेटेड अराउंड द Si4 ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ इट्स साइज। तो तुम कह सकते हो 6 Cl के मॉलिक्यूल्स को एक्सेप्ट करना सिलिकॉन 4+ के लिए आसान नहीं है, वो नहीं करेगा। एंड जो सेकेंड है, इंटरेक्शन बिटवीन द लोन पेयर्स ऑफ क्लोराइड आयंस एंड Si4+ इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तुम कह सकते हो कि इनकी इंटरेक्शन भी इनकी वीक है लोन पेयर में, किसके किसके बीच की, Cl और सिलिकॉन वाले लोन पेयर्स की, ठीक है। तो दैट इज वाई हम फ्लोरीन के साथ तो देख सकते हैं, बट क्लोरीन के साथ हमें देखने को ये नहीं मिलता है। Now we are going to check the important trends and the anomalous behavior of carbon, ठीक है। So let's read this. Like first member of other groups, carbon also differ from the rest of the members in its group, ठीक है। पहले वाले तो anomalous behavior शो करते थे और ये अपने सिलेबस में भी इंक्लूडेड है, ठीक है। सो इट इज ड्यू टू द स्मॉलर साइज, जैसे कि हमने बाकियों में देखा था, बोरोन में देखा था, स्मॉलर साइज एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। तो हमने बोरोन में सिर्फ 2 पॉइंट्स को देखा था, जिसमें हमने अनएबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स को देखा था और स्मॉलर साइज को देखा था। पर जब हम कार्बन वाले टॉपिक में आए तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमें न्यू इंट्रोड्यूस हुए, दैट इज कार्बन की होती है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू द अदर फैमिली मेंबर्स ऑफ द कार्बन फैमिली, एंड ऑल्सो इट हैज द हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बिकॉज इनकी साइज थोड़ी छोटी होती है, कॉम्पैक्ट होता है, तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होती है। सो इन कार्बन only S and P orbitals are available for bonding, okay, and therefore it can accommodate only 4 pair of electrons around it, ठीक है। so 4 हो गया इनका कोवैलेंसी, so it would limit the maximum covalency of 4
whereas the other member can expand their covalency due to the presence of d orbital. एग्जाम्पल सिलिकन, जर्मेनियम, टिन हो, लेड हो, ठीक है। नाउ अब इनके हम पी पाई, पी पाई, डी पाई, पी पाई सब देखने वाले हैं, इनके क्या क्या सीन इनके साथ। कार्बन ऑल्सो हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म द पी पाई मल्टीपल बॉन्ड with the self with itself and other atoms of smaller sizes and the higher electronegative, यानी कि C सिंगल C हो, C डबल C हो या CO हो, तो इनके साथ ये सॉरी CO हटाओ, पहले इन दोनों को ही देखो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे पी पाई फॉर्म हो रहा है। Few examples of the multiple bonding जैसे C double bond C, C triple bond C, C double bond O, C double bond S, C double bond triple bond N, ठीक है। Now heavier element do not form the p-pi bonds because their atomic orbitals are too large and diffuse to have the effective overlapping। अब तुम कह सकते हो कि अगर तुम किसी नीचे वाले फैमिली मेंबर को उठा लो और उसको तुम कार्बन के साथ मैच करो तो वहां पे तुम पी पाई को नहीं देखोगे, बिकॉज उनकी जो साइज होगी ना, जो नीचे की तरफ फैमिली मेंबर्स है, फॉर एग्जांपल टिन हो गया, लेड हो गया, कोई भी हो गया जो नीचे की तरफ है, तो उनका काफी जो बड़ा साइज होता है ना, उनकी वजह से इनके साथ जो प्रॉब्लम होता है वो होता है heavier element do not form p-pi bond because their atomic orbitals are too large and diffuses to have the effective overlapping, and from here again adjacent region can be created very easily, ठीक है। so this is also very important। now let's check the next para। carbon atoms have the tendency to link with one another through the covalent bonds to form the chain and ring। this property is called catenation and we know this is because the and we also know the कैसे catenation सबसे हाईएस्ट होता है इनका कार्बन, ठीक है। और जो जर्मेनियम सॉरी जो लेड होता है वहां पे कैटेनेशन होता ही नहीं है, देखो यहाँ पे दे रखा लेड डू नॉट हैव शो द कैटेनेशन या डू नॉट शो द कैटेनेशन। एंड ऑल्सो वी हैव सीन दिस टॉपिक अपने ट्रेंड्स वाले पेज है, तो तुम्हें इस चीज को विश्वास रखना होगा कि जो भी अपने ट्रेंड्स में है ना वो हमने सारे पॉइंट्स को इन्वॉल्व करें एनसीईआरटी का, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज सी सिंगल बॉन्ड सी जिसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है 144 पिकोमीटर होती है, ठीक है। बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, डाउन द ग्रुप देयर साइज इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एंड देयर बाई टेंडेंसी टू शो द कैटेनेशन ऑल्सो डिक्रीजेस। तो तुम कह सकते हो ना कि कैटेनेशन शो करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है डाउन, तो तुम कहो पूछोगे कि क्या रीजन है उसका पीछे, तो तुम बोलोगे कि उनकी साइज पहली बात इंक्रीज हो रही है और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। सो बिकॉज ऑफ दिस ऑल इफेक्ट कैन शो, वो मर्ज होंगे और शो करेंगे कि उनका कैटेनेशन डिक्रीज होने लगेगा। और जो हाईएस्ट कैटेनेशन होगा कार्बन, देन सिलिकन, देन जर्मेनियम और लेड का ऑलमोस्ट इक्वल होगा, और लेड सॉरी जर्मेनियम और 10 में ऑलमोस्ट इक्वल होगा, और लेड का तो होगा ही नहीं कैटेनेशन कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्ड इंथैल्पीज को दे रखा है, तो तुम देख सकते हो ये कार्बन कार्बन काफी स्ट्रांग होता है और इनको अगर ब्रेक करना है ना, ब्रेक करना है तो इनको 348 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए इनको, ठीक है। बॉन्ड इंथैल्पी है इनकी, सिलिकन के लिए थोड़ा कम, जर्मेनियम के लिए और थोड़ा कम, टिन के लिए और थोड़ा कम, बिकॉज देयर साइज इज गेटिंग इंक्रीज्ड लोअर साइड एंड ऑल्सो पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ। Now, due to the property of catenation and p-pi bond formation, carbon is able to show the allotropic forms. Now, we are going to check कि कार्बन्स के allotropic forms होते हैं, वो डायमंड होता है, फिर वो तुम्हारे फ्लोरीन बॉल होते हैं, फिर जो भी होते हैं ग्राफाइट होते हैं। तो बोलेगा कि कैटेनेशन क्यों शो कर रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे, तो तुम बोलोगे कि इसके पास पी-पाई बॉन्ड है, पहली बात, और दूसरी बात इसके पास काफी एक अच्छा प्रॉपर्टी है जो है कैटेनेशन। तो बिकॉज ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कैटेनेशन एंड द पी-पाई बॉन्ड, दिस इज एबल टू शो द डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स। तो जो अब एलोट्रोप ऑफ कार्बन्स हैं उसको हम चेक करते हैं। कार्बन एग्जिबिट मेनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स बोथ क्रिस्टलाइन, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्रिस्टलाइन और एमोर्फस दोनों टाइप के एलोट्रोपिक फॉर्म्स को शो करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो तुम्हारे डायमंड है और जो तुम्हारे ग्राफाइट है, दिस टू आर क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस टू आर द क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, ठीक है। यहाँ पे वो क्रिस्टलाइन। In 1985, third form of carbon known as the fluorine was discovered by H.W. Kroto, E. Smalley and R.F. Kull। साइंटिस्ट को हटाओ, बस याद रखो फ्लोरीन को डिस्कवर सबसे आखिरी में किया गया है, दैट इज 1985 में, ठीक है। यहाँ पे 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व है जिनके नाम जो लास्ट वाले हैं KSC है, बस हल्का सा दिमाग में रख लेना। फॉर दिस डिस्कवरी दे वर अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज इन 1996। सो कीप इन माइंड नोबेल प्राइज वाला डेट याद रख लो।
ठीक है। 1996 में इसको अवार्ड मिला था और इनकी डिस्कवरी हुई थी 1985 में। आफ्टर 11 ईयर्स इनको अवार्ड मिला। किनको किनको? के को, एस को और सी को। वो थे क्रोटो, एस्मेली एंड कर्ल। नाउ वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट वन, दैट इज द डायमंड। ठीक है, सो लेट्स चेक नाउ। चलो, जो हमने डायमंड का फर्स्ट पॉइंट देखा था दैट वाज क्रिस्टलाइन। नाउ डायमंड के पास होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये लिंक्ड होते हैं 4 अदर कार्बन से, तभी तो उनका sp3 है ना। सिंपल सी बातें हैं, 4 सिग्मा है तो sp3 है, 4 सिग्मा है तो टेट्राहाइड्रल है। नाउ इनका टेट्राहाइड्रल फैशन होता है, शेप। ठीक है, सीसी बॉन्ड लेंथ इनका होता है 154 पिकोमीटर का और इनके पास होता है रिजिड 3D नेटवर्क ऑफ कार्बन एटम्स। बस हो गया, इतना ही पॉइंट है इनमें। ठीक है, और बाकी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। इनके पास होता है एक्सटेंडेड कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा इनकी जो लेंथ है दैट इज 144 पिकोमीटर, सो दिस इज क्वाइट इजी। ऑल्सो तुम यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड है और यहाँ पे एक रिंग फॉर्मेशन हो रही है और ये है 6 कार्बन की रिंग। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ से क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं जो कि है तो एनसीईआरटी से ही, बट तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम गलत करके आ जाओगे। ठीक है, नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 6 कार्बन की रिंग है। अब यहाँ पे देखो, डायरेक्शनल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द लटाइज। तो तुम कह सकते हो यहाँ पे है डायरेक्शनल कोवेलेंट बॉन्ड और तुम उसकी लेंथ देख सकते हो 154 और यह एक्सटेंडेड फॉर्म में। नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक द एक्सटेंडेड कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड देयरफॉर डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। ओके, so it is used as an abrasive for the sharpening hard tool and making the die and in the manufacturing of the tungsten filament for the electric light tubes। ठीक है, तो ये टंगस्टन को भी प्रोसेस करने में हेल्प होता है, डाई बनाने में हेल्प होता है एंड इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन द अर्थ। एंड द रीजन बिहाइंड दिस कि इनके पास होती है एक्सटेंडेड कोवेलेंट बॉन्डिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक बिकॉज ये काफी हद तक एक कॉम्पैक्ट और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, now problem number 11.7, diamond is covalent, we know this, yet it has high melting point और वो reason पूछ रहा है। now जो reason है, diamond has a 3D network involving strong CC bond of 154 picometer which is very difficult to break and it has the high boiling point। तो इसके पीछे का जो इसने रीजन बोल दिया, इसने रीजन सिंपली बोल दिया इसके पास होता है 3D नेटवर्क CC bonds के, जिसकी वजह से हो जाता है काफी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, now we are going to check the next one, that is the graphite। again we are going to highlight the important टर्म्स हेयर, जिससे कि तुम्हें आसानी होगी रिवाइज करने में। सो इट इज लेयर्ड स्ट्रक्चर और यहाँ पे डिफरेंट लेयर को हेल्प करने के लिए होता है वैंडरवाल फोर्स और इसके जो वैंडरवाल फोर्स जो डिफरेंट लेयर्स को हेल्प कर रहे होते हैं उन लेयर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 340 पिकोमीटर। ईच लेयर इज कंपोज्ड ऑफ प्लेनर हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स। सो फ्रॉम हियर ओनली आई वाज एबल टू ड्राइव अ डिफरेंट क्वेश्चन इन द डायमंड वाले में कि वहां पे भी हेक्सागोनल रिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है प्लेनर हेक्सागोनल रिंग और यहाँ पे जो सीसी की जो बॉन्ड लेंथ है विद इन द लेयर दैट इज 141.5 पिकोमीटर। ठीक है, ईच कार्बन एटम इन द हेक्सागोनल रिंग इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड and makes the 3 sigma bonds with the 3 neighboring carbon atoms। fourth electron forms the pi bond। तो यहाँ पे तुम पहले स्ट्रक्चर को देखो कैसा है। तो यहाँ पे जो सीसी बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 141 पिकोमीटर। तुम देख सकते हो यहाँ से काफी डिफरेंट है डायमंड से। और इसके जो डिफरेंट लेयर्स की जो डिस्टेंस है दैट इज 340 पिकोमीटर। यहाँ पे भी है हेक्सागोनल 6 कार्बन रिंग। ठीक है, ये है लेयर्ड। इनका जो 4th इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है पाई बॉन्ड फॉर्मिंग। ठीक है, पाई बॉन्ड बस लिख लो यहाँ पे। सो लेट्स चेक। अब यहाँ पे देखो 4th इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स द पाई बॉन्ड। इसको कर लो हाईलाइट बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4th इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स द पाई बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड ओवर द होल शीट। इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल। तो तुम कह सकते हो यहाँ पे जो 4th इलेक्ट्रॉन जो था जिसने पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन की वो होता है मोबाइल। ठीक है, वो घूम सकता है। यही घूमने का रीजन है कि ग्रेफाइट कंडक्टिंग होता है। ठीक है, देयरफॉर ग्रेफाइट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी अलोंग द शीट। ग्रेफाइट क्लीव्स इजीली बिटवीन द लेयर्स एंड देयरफॉर इट इज वेरी सॉफ्ट। सॉफ्ट इसलिए है क्योंकि ये लेयर्ड फॉर्म में है और लेयर को इजिली क्या करा जा सकता है, क्लीवेज किया सकता है, क्लीव किया जा सकता है एंड दैट इज वाई इट इज स्लिपरी ऑल्सो। यू कैन चेक योर पेंसिल, कैसे तुम पेपर पे ऐसे करके लिख सकते हो ना। सो दिस इज स्लिपरी, तभी तो लिख पा रहे हो। और स्लिपरी होने के पीछे का जो रीजन है इसके जो ये लेयर्ड है ना वही रीजन है बस।
For this reason, graphite is used as a dry lubricant in machine running at the high temperature where oil cannot be used as a lubricant. अब सपोज करो कि तुमने इतने हॉट टेम्परेचर में किसी ऑयल को डाला, वहाँ पे आग पकड़ ले, क्या फ़ायदा। इसलिए वहाँ पे वैसी जगहों पे हम lubricant के तौर पे यूज़ करते हैं ड्राई फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट ही, जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और स्लिपरी होने की वजह से उसको फ्रिक्शन से बचाता है और वो एज अ टाइप ऑफ ल्यूब्रिकेंट यूज़ हो पाता है इन अ हेवी वर्किंग मशीन्स, ठीक है, जिसकी टेम्परेचर होती है अच्छी खासी। ओके, नाउ द थर्ड वन, फ्लोरीन, विच वॉज डिस्कवर्ड इन द 1985, नोबेल प्राइज मिला 1996 में। और यहाँ पे साइंटिस्ट जो थे वो थे EKC, 3 साइंटिस्ट थे, तीनों के नाम ऐसे स्टार्ट होता है। तो ऐसे देखो मैंने साथ साथ में अभी तुमको बता दिया याद करके, ठीक है, सो इट्स क्वाइट ईजी। नाउ फ्लोरीन्स आर मेड बाय द हीटिंग ऑफ ग्रेफाइट इन एन इलेक्ट्रिक आर्क इन द प्रेजेंस ऑफ द इनर्ट गैसेस लाइक, अब गैसेस को अलग से हाईलाइट कर लो, वो है हीलियम और आर्गन। तो तुम कह सकते हो कि तुमने ग्रेफाइट लिया, ठीक है, उसको तुमने हीट करा इलेक्ट्रिक आर्क में इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेस थे हीलियम और आर्गन के, तो वहाँ पे तुमने मेकिंग कर दिया फ्लोरीन का, ठीक है, बस तुमने यहाँ पे लिख लो मेकिंग। नाउ a sooty material formed by condensation of the vaporized C and small molecules consist mainly of C60 with a smaller quantity of C70 traces of the fluorine consisting of even number of carbon atoms up to 350 और above। तो तुम कह सकते हो कि यहाँ पे जो कार्बन वेपराइज हुआ उसको पता चला कि वहाँ पे मैक्सिमम C60 के मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ C70 भी हैं, और ये जो टोटल नंबर है ना कार्बन एटम्स के वो है लगभग 350, ठीक है। तो ये बातें पता चली हैं अपनी। नाउ फ्लोरीन आर द ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन बिकॉज दे हैव स्मूथ स्ट्रक्चर विदाउट हैविंग द डैंगलिंग बॉन्ड्स। तो तुम कह सकते हो जो सबसे प्योर फॉर्म है ना अपने इस कार्बन एलेक्ट्रॉप्स के, तो वो कोई और नहीं है बल्कि फ्लोरीन है। और इसके पीछे का जो रीजन है दैट इज दे हैव द स्मूथ स्ट्रक्चर विदाउट हैविंग द डैंगलिंग बॉन्ड्स, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट लाइन है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ पे अच्छा खासा क्वेश्चंस क्रिएट हो सकता है। फ्लोरीन आर द केज लाइक मॉलिक्यूल्स, फ्लोरीन्स आर द केज लाइक मॉलिक्यूल्स, देखते हो ना अभी देखोगे नेक्स्ट पेज में कैसे एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर है जो अंदर से एक पूरा केज जैसा लुक देता है। नाउ C60 मॉलिक्यूल हैज अ शेप लाइक अ सॉसर बॉल, देखो सॉसर बॉल की तरह शेप है, एंड ऑल्सो कॉल्ड एज द बकमिंस्टर फ्लोरीन। नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म्स आने वाले हैं जिससे क्वेश्चन तो काफी इजीली क्रिएट हो सकता है और भूला भी उतनी आसानी से जा सकता है, ठीक है। सो इट कंटेन्स 26 मेंबर रिंग्स एंड 12 5 मेंबर रिंग्स। अब इसको 20 और 6 को 26 मत समझ लेना, ठीक है। अब ये नहीं कि तुमने इस वाले को 26 समझ लिया और इसको तुमने 25 समझ लिया, 26, नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। यहाँ पे कुछ ऐसा है, जो 20 है उसका वो नंबर है, यहाँ पे 20 कैसा है, 20 ठो 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग, और 12 ठो 5 मेंबर वाले रिंग है। बस तुमको ऐसे याद रखना है, यहाँ पे 20 इंटू 6 कितना होता है 120, और 12 इंटू 5 कितना होता है 60, यानी कि यहाँ पे 60 120 का कुछ रेशियो चल रहा है, ऐसे करके निमोनिक्स बना के याद कर लो, ठीक है, वरना वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे एग्जामिनेशन देते वक्त कि 25 मेंबर था या 26 मेंबर था, ठीक है। सो कीप इन माइंड 20 थे 6, 12 थे 5 मेंबर वाले। अ 6 मेंबर रिंग इज फ्यूज्ड विथ 6 और द 5 मेंबर रिंग। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, ये जो अपने 6 मेंबर वाले रिंग है ना, 6 मेंबर रिंग है, आप लिख लो 6 मेंबर रिंग, ये तो फ्यूज कर सकते हैं 5 वाले से भी और फ्यूज करते हैं 6 वाले से भी, बट ये जो 5 वाला है ना वो सिर्फ फ्यूज कर सकता है 6 वाले से, ठीक है। बट अ 5 मेंबर रिंग कैन ओनली फ्यूज विद द 6 मेंबर रिंग। तो कीप इन माइंड 5 वाला सिर्फ 6 से फ्यूज करेगा, बट 6 वाला 5 से भी कर सकता है। All the carbon atoms are equal and undergo the sp2 hybridization. So it is very clear, जो अपना डायमंड था वहाँ पे था sp3, ये जो अपना ग्राफाइट मिला वहाँ पे था sp2, और यहाँ पे जो फ्लोरीन मिला यहाँ पे भी निकला sp2। प्रॉपर बात तो ये है, जो अपना ग्राफाइट है इसी को हमने इलेक्ट्रिक आर्क में हीलियम और आर्गन की मदद से फ्लोरीन में कन्वर्ट करा है, तो इसलिए दोनों sp2 है, तुम ऐसे करके याद कर सकते हो। Now each carbon atom forms the 3 sigma bond, that is why it is sp2, and other 3 carbon atoms, the remaining electron at each carbon is delocalized, ठीक है, इसको कर लो हाईलाइट, electron at each carbon is delocalized in the molecular orbitals, which in turn give the
एरोमेटिक कैरेक्टर टू द मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज, यहाँ पे देख लो, दिस इज 5 मेंबर रिंग, और यहाँ पे देखो कहीं 6 मेंबर रिंग होगा छिपा हुआ, यहाँ पे रहा 1 2 3 4 5 6। तो देख सकते हो कैसे 6 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग आपस में इधर कंबाइंड फॉर्म में घूम रहे हैं। ऑल्सो कीप इन माइंड दिस इज एरोमेटिक, और एरोमेटिक होने का जो रीजन है वो है इलेक्ट्रॉन्स जो डीलोकलाइज हो रखे हैं रिमेनिंग कार्बन एटम्स के, ठीक है, तो इसकी वजह से ये हो चुके हैं एरोमेटिक। नाउ द बॉल शेप्ड मॉलिक्यूल हैज 60 वर्टिसेस, 60 वर्टिसेस, अब काउंट करते रहना। ईच वन इज ऑक्यूपाइड बाय वन कार्बन एटम एंड इट आल्सो कंटेन्स बोथ single and double bonds with the cc distance 143 and 138 picometer respectively. ओके, तो यहाँ पे लिख लो इनके पास होते हैं 60 वर्टिसेस, 60 वर्टिसेस को कंबाइन ऑक्यूपाई करते हैं कार्बन एटम्स जो कंटेन करते हैं बोथ सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड। इनकी सिंगल बॉन्ड की लेंथ होती है 143.5, डबल की लेंथ होती है 138.3 पिकोमीटर्स। ओके, नाउ स्फेरिकल फ्लोरीन आर आल्सो नॉन एज द बकी बॉल्स इन शॉर्ट, ठीक है, तो इसको तुम कहते हो बुकी बॉल, जो बोलना है बोलो यार, बीवी बोल दो इसको, ठीक है, बकी बॉल, बकमिंस्टर फ्लोरीन, सिर्फ फ्लोरीन सभी बोल दो। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ C60 बकमिंस्टर फ्लोरीन, नोट दैट द मॉलिक्यूल हैज द शेप ऑफ सॉशर बॉल, यानी कि फुटबॉल। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछे कि जो अपना C60 बकमिंस्टर फ्लोरीन होता है उसका शेप क्या होता है, पॉइंट 1 वो होता है सॉसर बॉल शेप का, पॉइंट 2 वो होता है फुटबॉल शेप का, और पॉइंट 3 बोथ 1 and 2। तो पॉइंट 3 इज करेक्ट, ये सॉसर बॉल को ही फुटबॉल बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने काफी चालाकी से लिख रखा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट द ग्राफाइट इज थर्मोडाइनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप। वी हैव सीन दिस इन द कहाँ पे, ट्रेंड्स वाले पेज में, जहाँ पे हमने डेल्टा H 0 रखा था ग्राफाइट के लिए, ठीक है। डेल्टा HF फॉर्मेशन ग्राफाइट का इज टेकन एज 0, और वहीं पे हम इंथैल्पी देखते हैं डायमंड एंड फ्लोरीन के लिए 1.90 एंड 38.1। सो वी हैव रिटन दिस इन द ट्रेंड वाले पेज में। अदर फॉर्म ऑफ द एलिमेंट कार्बन लाइक कार्बन ब्लैक, कोक, चारकोल आर ऑल इम्प्योर फॉर्म्स ऑफ ग्राफाइट एंड फ्लोरीन। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि कुछ और फॉर्म्स होते हैं एलिमेंटल फॉर्म कार्बन के जो कि होते हैं ब्लैक, कोक, चारकोल, तो तुम कह सकते हो ये कोई और नहीं है, ये इम्प्योर फॉर्म ऑफ ग्राफाइट या फ्लोरीन के इम्प्योर फॉर्म है। ओके, सो कार्बन ब्लैक इज ऑब्टेन बाय बर्निंग द हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कंबाइंड फॉर्म में कार्बन जो मौजूद था उनको बोल रहे हैं, ठीक है, इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो कार्बन ब्लैक, देन चारकोल एंड कोक आर ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग द वुड और कोल रिस्पेक्टिवली एट द हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और यहाँ पे तुम फिर लिख लो चारकोल एंड कोक। तो यहाँ पे तुमने ये जो दो टर्म्स को लिखा है, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स के फॉर्मेशन के बारे में दे रखा है, ठीक है। तो तुम्हें ये पता चलेगा इससे, ये जो अपना कार्बन ब्लैक है यहाँ पे तो तुमने थोड़ी सी ऑक्सीजन दे भी दी है, लिमिटेड सप्लाई है ऑक्सीजन का, बट जो चारकोल और कोक के लिए है तुमने कोई ऑक्सीजन नहीं दी, यहाँ पे टोटली एब्सेंस ऑफ एयर है, ठीक है, बस कीप इन माइंड। और इस कार्बन ब्लैक के लिए तुमने यूज करा है हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन के लिए तुमने कार्बन ब्लैक फॉर्मेशन में हेल्प लिया, और इस चारकोल या कोक में तुमने जो यूज लिया है वो है वुड का या कोल का, जो कि इम्प्योर फॉर्म ऑफ ग्राफाइट या फ्लोरीन हो सकते थे। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ कार्बन, दिस वुड बी आवर लास्ट पॉइंट इन दिस टॉपिक ऑफ कार्बन फैमिली। नाउ ग्राफाइट फाइबर्स एम्बेडेड इन द प्लास्टिक मटेरियल्स फॉर्म द हाई स्ट्रेंथ लाइट वेट कंपोजिट्स, यानी कि किसी ग्राफाइट फाइबर को एम्बेड कर दो प्लास्टिक मटेरियल के साथ तो तुम्हें काफ़ी मजबूती और काफ़ी लाइट वेटनेस देगा। द कंपोजिट आर यूज्ड इन द प्रोडक्ट्स सच एज टेनिस रैकेट, फिशिंग रॉड, एयरक्राफ्ट, फोन्स। Being good conductor, graphite is used in the electrodes in batteries and industrial electrolysis। अगर तुमने अपने इन्वर्टर को देखा होगा, इन्वर्टर वाली जो बैटरी होगी वहाँ पे देखना उसके जो इलेक्ट्रोड निकले होंगे वहाँ पे ग्राफाइट का यूज हुआ है। नाउ यहाँ पे क्रूसिबल्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो इधर, क्रूसिबल्स मेड फ्रॉम ग्राफाइट आर इनर्ट टू डाइल्यूट एसिड एंड अल्कलीस, ठीक है। being highly porous, activated charcoal is used in the absorbing of the poisonous gases। Now don't get confused here,
यहाँ पे इसने डी का यूज किया, ठीक है, एब्जॉर्बिंग ऑफ द पॉइजनस गैसेस एंड ऑल्सो यूज्ड इन द वाटर फिल्टर्स टू रिमूव द ऑर्गेनिक contaminators and the air conditioning system to control the odor. Now carbon black is used in the black pigment in blacking and as a filler in the automobile tires. The different uses को बता रहा है. Now coke is used as the fuel in largely in reducing the agent in metallurgy. Diamond is a precious stone and used by the jewelers, jewelry making में help होता है. ना यू हैव टू कीप इन माइंड, जो हम डायमंड्स की बातें करते हैं 1 कैरेट 10 कैरेट 20 कैरेट, तो जो 1 कैरेट होता है दैट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम्स. ओके, सो वी आर डन विद द कार्बन फैमिली, वी आर डन विद द बोरोन फैमिली एंड द नेक्स्ट lecture will be of the nitrogen family and I'm ending the lecture here. Okay, so thanks for watching and this page is very much important. Let me show you. This page is very important because again यहाँ पे ज़्यादा probability रहेगी कि क्वेश्चन यहीं से क्रिएट होंगे in your examination. So thanks for watching and bye.